Hey everyone, thank you so much for joining another episode of Primary Market Chatter. This is the October second week episode, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी नेक्स्ट वीक के आईपीओज होते हैं उनको कवर करते हैं और उनकी अपनी रीड बताते हैं एंड एसेंशियली ट्राई एंड कवर कि हमें क्या लगता है कंपनीज के बारे में. Before we get started, just want to highlight a few things. A, this is going to be a very smallish sort of a episode जहां पे हमने 11 आईपीओज भी कवर किए हुए हैं इन स्पेस. दिस हैज जस्ट 3. एक मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है और 2 एसएमई आईपीओ आ रहे हैं जिनकी बात करेंगे. सो शुड बी अ स्मॉल स्पेस टू कवर बट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो कंपनीज आ रही हैं काफी इंटरेस्टिंग है. Maybe not in the good sense, but yeah, it's very interesting to know about these companies as well. Just want to set it up saying that we are not SEBI registered. हम SEBI registered नहीं है, तो इसलिए please do not take our advice as the final word. Do your own due diligence. Think of it as just like a chat show where four friends are talking. I know one of the friends Yash is missing, but उसको मैं add करने की कोशिश कर रहा हूँ. In the meanwhile, let me set it up by saying that we'll first do the main board Garuda and then probably move to the two SMEs that are going to open. ख्याति ग्लोबल आ रही है, उसके बाद शिव टेक्सकैम आ रही है. सो उन दो कंपनियों की बात करेंगे. अगर आपने ये मिस कर दिया है कोई भी कंपनी को सुनना या आपने बीच में नहीं ज्वाइन किया है, बीच में आप मिस कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो ऊपर मैंने यूट्यूब चैनल पिन कर रखा है, तो आप ये यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं. वहां पे भी हम अपनी रीड डालते हैं, तो मैं ये कल अपनी ये स्पेस जो है वो वहां पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो आप वहां पे भी इन कंपनीज के बारे में सुन सकते हैं. Having said that, maybe we'll start with Garuda Construction and Engineering Limited. It's a small IPO. For main board, it's a very small IPO, 250, 260 CR IPO. The company is an EPC and does construction for residential, commercial, industrial projects. Maybe, Tanmay, do you want to go ahead and cover about Garuda Construction? Hey, Tanmay, can you hear me? Rohit, can you hear me? I can hear you. I think Tanmay is still on mute. Yeah. I'm not sure. Let me check. हेलो हाँ जी. हेलो सर, हाँ मेरा जी आवाज आ रहा तन्मय. है? Yes, can hear you now. But you are again on mute. Can you say something? Okay, it seems Tanmay is joining. In the meanwhile, let's just wait and give him a minute. But just to set it up, हम दो कंपनीज की एसएमई कंपनीज की बात करेंगे और उसके बाद we'll also talk about the ESM framework which is about to come up in SME companies as well. How do we understand from it? Although it is very new and tentative right now, so we might be slightly off and our read might be different, but just from we'll talk about what we understand about the read. Other than that, if you have any questions in term, please do follow and post them in the chat as well. We'll try and talk a bit about the SMEs which are about Hyundai as well. Hyundai IPO में जो नया IPO आ रहा है उसका GMP has been going all over the places, has been decreasing. So we'll kind of cover very small snippets with respect to that as well. I'm just trying to see if I can add Tanmay back. But yeah, that's the agenda for the day. I'm slightly struggling to add both Tanmay and Yash, and now Rohit also seems to be off. But yeah, Tanmay, can you Yeah, see am I if you can audible? speak now? Yeah, you are. Go ahead. Am I audible? Yes. Sir, actually, I am just 5 7 minutes से मेरा नेटवर्क का उधर should I start with Garuda? Yes. हाँ, so मतलब कोई भी मैं कंपनी का स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कंपनी क्या करती है. ये कंपनी का दो इंट्रोडक्शन है, एक फॉर्मल वाला और एक जो रियलिटी है. फर्स्ट विल बी द फॉर्मल वन. Garuda Construction Limited is an end-to-end civil construction company for residential, commercial, infrastructure and industrial projects. It also does O&M services, operations and maintenance. अभी ये इसका फॉर्मल होगा. अभी रियल इंट्रोडक्शन ऐसा है कि इट इज सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर इट्स प्रमोटर ग्रुप कंपनी पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड एंड द रिलेटेड पार्टी कंपनीज.
So this company has 96% revenue from the group companies in FY23 and almost 70% revenues in FY24 और जो remaining 20% है उनका भी कहीं ना कहीं प्रॉपर से संभाल है. So this company is basically raising 264 crores, out of which 174 crore will be fresh and 90.25 crore will be OFS. So I'll just give the breakup of the fresh issue. The company is raising 100 crores for working capital and the rest 74 crores will go for general corporate purposes and a small portion which is not mentioned in the RSP for inorganic acquisitions. See, they haven't identified any organizations, but they have kept a part out of it. So now, while coming to its working capital, I'll just say one thing that the company's parent company, PKH Ventures, also had came with an IPO in July 23. It was a 380 crore IPO, but the IPO couldn't get subscribed. It was a main board IPO, and the IPO was withdrawn. The subscription was just 65%. So what the promoter is doing, he couldn't sell the IPO the last time, so he's coming with the IPO of its subsidiary. Now, what I wanted to say out of this was the RHP document of the PKH Ventures had also said that we want to raise 80 crores for working capital needs of Garuda Construction, which was that time their main subsidiary. And now Garuda Construction is coming with an IPO. So we can just match the figures what the management had projected in 2023 and the current figures. So I'll just net working capital requirements what we have mentioned in the RHP of 2023 and the current RHP. I'll just tell you those figures. 2022, the figures were absolutely matching in both 27 crores. In 2023, the older RHP shown the working capital requirement of 30 crores. But in reality, they consumed 57.6 crores. In 2024, they had projected 113 crores. Means this 113 crores, out of this, they wanted to finance 60 crores from the IPO. But in reality, they just consumed 91 crores. And in FY25, they had projected 142 crore working capital requirement in the 2023 RHP. And now they're seeing 167 crores. Now, there are many things in this. Actually, both the data are official and given in the RHP. You will get that all the details in the Google. So I don't want to interpret these things. There are many things related to this. A person with an reasonable accounting mindset or who understand the business well, we can get the clarifications himself, because I cannot speak those on the public platform. So I'll not go much, not give much clarity on it. Now I'll come to its financials. In FY23, the company did a revenue of 161 crores and it did a PAT, profit after tax, of 40.8 crores. In FY22, the revenue dropped by 5% to 154 crores and PAT dropped by almost 10% to 36.4 crores. Out of the working capital data given in the new RHP, the company is projecting a revenue of close to 230 crores in FY25. And the PAT I cannot take because there are no management interviews, and the PAT for a construction company at 25-30% for me is a bit unrealistic. So the company since incorporation, the company has completed 6 projects, okay, whose aggregate value is 450 crores. The company is doing 12 projects which are ongoing, and its total order book at this point stands at 1408 crores, which is almost 9 times of their current revenue. But the interesting thing in this is the trade receivables. Now, in FY23, the company did a revenue of 161 crores. The trade receivable was 77 crores, which was 48% of the revenue. And now the most interesting or the caution things come up. In FY24, the company did a revenue of 154 crores, but the trade receivable was 176 crores, which was 15% more than the total revenue. मतलब इनका पिछले साल का भी रिसीवेबल था, उसके पिछले साल का भी रिसीवेबल था, और ये साल भी 95% ऑफ द रेवेन्यू इज इन ट्रेड रिसीवेबल्स. बैलेंस शीट में ऑफिशियली लिखा हुआ है. नाउ one more interesting data in this is, as per the working capital, the company is projecting a revenue of 230 crores in FY25 and they have
clearly said in the RHP that we are expecting a trade receivable of 144 crores, which is 45% of the revenue. मतलब पहली बात तो कंपनी खुद बोल रहा है कि अगले साल हमारा 45% ट्रेड रिसीवेबल में रहेगा, और पिछले रिसीवेबल का क्या होगा इसका कोई क्लैरिटी नहीं है. And they also have written that our trade receivable will be 136 crores. The company is expecting a revenue growth of 20% from FY25 to FY26. मतलब मैं अगर इसको समराइज करूं तो कंपनी FY26 में 260 करोड़ का 270 करोड़ का रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रही है, उसमें से 136 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल, मतलब 50% से ज्यादा होगा. नो, there is a concentration of the revenue. Okay. Now I'll just give the breakup of each year, the revenue recognized from the promoter group. FY22, 87% revenue came from the promoter group. In FY23, 94% revenue came from the promoter group. In FY24, the number drastically falls to 34%. But जो बचे हुए थे ना, उनका ट्रेड रिसीवेबल में दिख रहा है ना. कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे तो जा ही नहीं रहा हूँ. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे FY22 में 13 करोड़ का प्लस पॉजिटिव कैश फ्लो था, FY23 में 12.3 करोड़, और FY24 में -68 करोड़. हाउ डज दिस हैपन? वी डोंट नो. दिस कंपनी हैज एन एक्टिव लिटिगेशन ऑफ 17 करोड़. प्रमोटर ग्रुप के अगेंस्ट 37 करोड़ का लिटिगेशन दिखा रहा है इन दी ओल्ड आरएचपी, और नए आरएचपी में 27 करोड़ दिखा रहा है. और जो 10 करोड़ का जो चीज है वो दिखा ही नहीं कि किया है, इन्होंने कर दिया ड्यूज या फिर क्या है, वी डोंट नो. ये 10 करोड़ कहां से कम हो गया दिख नहीं रहा है. एक कंपनी पे एक डायरेक्ट टैक्स का भी 26 करोड़ का चल रहा है, करंट रनिंग केस है. पूरे साल का मुनाफा कितना है ये 6 करोड़. Now I'll just come one more interesting figure. FY23, the old RHP, they has said that we have an order book of 547 crores. And before FY22, it was 453 crores. But the billed revenue, जो order book bill की गई थी, FY24 was 52 crores. FY23 was 25 crores. And FY24 was just 16 crores. Now I'll come to debtor days. 468 debtor days. The worst in the Indian stock markets. 100 करोड़ के रेवेन्यू, 100 करोड़ के मार्केट कैप से तो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप किसी भी कंपनी पे चला हुआ इतना ज्यादा डेटा ड्रेस किसी का मैंने खुद तो नहीं देखा. आई विल प्रेजेंट वन मोर इंटरेस्टिंग डेटा. इन FY23 द कंपनी गॉट न्यू ऑर्डर्स ऑफ 256 करोड़. ये साल 2023 में इनको 256 करोड़ के नए ऑर्डर मिले, और उसके सामने 251 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हो गए. दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. अभी ये कंपनी का एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था जो प्रमोटर ने बताया कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली, इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. इट वाज आई थिंक 660 करोड़ प्रोजेक्ट. तो ये इन लोगों ने क्या किया है, वो अपफ्रंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. वो 13 साल और 6 महीने, मतलब टोटल 27 हाफ ईयरली एन्युइटीज पे ये रेवेन्यू को बुक करेंगे. तो as per PKH Ventures DRHP, they have said that we will be recognizing 78 crores annually. By the way, ये पूरा प्रोजेक्ट इसके सब्सिडरी गरुड़ा कंस्ट्रक्शन जिसका IPO आ रहा है उसने कंप्लीट किया है. बट देयर इज अ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट ऑफ 40% टू द प्रमोटर ग्रुप. मतलब 78 करोड़ में से गरुड़ा कंस्ट्रक्शन को सिर्फ 47 करोड़ आए, उसमें से सिर्फ 2024 में से 15 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है. कुछ समझ नहीं आ रहा है. और एक चीज बोलूंगा, इन्होंने ग्रुप कंपनी दिखाई है आर्टिमिस इलेक्ट्रिकल्स करके जो लिस्टेड है, उसके ऊपर इन्होंने 120 करोड़ का ऑर्डर दिखाया है. बट वो कंपनी का करंटली किसी भी तरह का कैपेक्स, किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है. 120 करोड़ का इन्होंने दिखाया था कि हम 2023 में कंप्लीट करेंगे, वो अभी भी ऑर्डर बुक में 100% स्टैंडिंग है. और मतलब ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा. बट ओवरऑल मैं एक चीज बोलूंगा कि ये आईपीओ से जितना हो सके उतना दूर रहे और क्लियर कट अवॉइड है. ये मतलब मुझे तो डाउट है कि आईपीओ सेल भी होगा क्या, और अगर सेल हो गया तो ये खुलेगा 20-30% नीचे. मतलब, और इसका मैं अभी बोलना नहीं चाहिए, बट वन ऑफ द वर्स्ट एंड अनप्रोफेशनल आरएचपी, मतलब इससे अच्छी आरएचपी 20 करोड़ के ऐसे में आईपीओ बनाते हैं. बहुत ही थर्ड क्लास दर्जे की आरएचपी थी. अकाउंटिंग बहुत बुरी तरीके से की गई है. मतलब मेरे जैसे बहुत यंगस्टर को जो अभी 2-3 साल से आईपीओ देख रहा है, अगर उसको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ गलत कर रहे हैं, तो व्हाट आर देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डूइंग? बिग कंसर्न फॉर मी. तो ये आईपीओ पे दिस आईपीओ डजंट इवन डिजर्व योर रिटेल एप्लीकेशन. एंड इफ यू आर अप्लाइंग, यू जस्ट थिंक दैट यू आर प्रमोटिंग अ
नॉनसेंस कंपनी टू लिस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स, और उसके बाद वेल डिस्ट्रक्शन श्योरली होने वाला है. सो जितना हो सके दूर रहना है. ये मतलब आईपीओ को कंसीडर नहीं करना है. बिल्कुल क्लियर कट अवॉइड है मेरे तरफ से. एंड one more thing, I have some contacts in the news channels. Okay, तो मैंने पूछा कि यार आपने प्रमोटर का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया. So the guy said that we had mailed the company, but company is not ready to give the interview. And in their IPO meet, the promoter was only not there. The Praveen Kumar Bijendra Kumar Agrawal, the main promoter of the parent company, was not present in the IPO meet. तो मतलब यार मैं और बहुत बात कर सकता हूँ, बट मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे. That's it from my part. Thank you, Tanmay. Thank you for that review. It seems that it is a void. Very clearly, it's a void. Anchor book वगैरह की भी बात नहीं करूंगा because anchor book कल आनी है, but again, it's a small issue, so I think it will sail through. But I am personally avoiding the issue completely. एक दो चीजें जो मुझे अच्छी लगी थी at first glance वो ये था कि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है. So just want to clarify कि वो जो ऑर्डर बुक बड़ी दिख रही है उसका टाइम ड्यूरेशन भी उतना ही बड़ा है. So as Tanmay was mentioning, वो 13.5 साल तक एन्युटी रिलीज करेगी कंपनी प्रॉफिट में. So it's something which will take forever, and it just seems that the market promoters trying to cash out the bull markets per se. So not going to apply for this issue at all. It's a smallish issue. सर मैं और एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा. Yeah. तो FY23 में जो इनका प्रमोटर ग्रुप का आईपीओ आया था, पीकेएच वेंचर्स, तो इनका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू दो थे. इन्होंने एक अनकम्प्लीटेड अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, तो वो इन्होंने बिड करके जीता था गवर्नमेंट से, और जो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला था वो गवर्नमेंट के साथ उनका सैंक्शन था, मतलब एग्रीमेंट था कि गवर्नमेंट ओनली विल बाय दैट. तो उसका जो फाइनेंसिंग था वो आईपीओ से रेस करना चाहते थे. ओके, दैट वाज द मेन कोर कि क्यों पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ आया था. तो वो आईपीओ सक्सीड नहीं हुआ, और पहली बात तो वो कंपनी बहुत ही ज्यादा डेट लाइडन कंपनी है, और उनके पास बैंक बैलेंस उस टाइम पे आई थिंक सिर्फ 22 करोड़ था. उसमें से भी वो बैंक बैलेंस भी मतलब वो चेक्स दिखाए थे उन्होंने, मतलब मैं उसके ऊपर बात करना गलत हो जाएगा. तो वो जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हुआ ही नहीं, और इसके ऑर्डर बुक में 300 करोड़ का ऑर्डर उसका दिख रहा है. तो वो अगर पूरा नहीं होगा तो इसको कहां से मिलेगा. और एक चीज, इन्होंने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से ऑपरेशन एंड O&M का एग्रीमेंट भी किया हुआ है, बट इन्होंने सिर्फ 17 करोड़ रेवेन्यू दिखाया. जो प्रमोटर ने पिछले साल बोला था 35 करोड़ पर साल का करेंगे O&M, मतलब उनको एन्युटी 78 करोड़ का रहा, और O&M 30 करोड़ का करेंगे. और एक चीज, इन्होंने इनके प्रमोटर ग्रुप ने एक फोर्ट बनाया है. फोर्ट मतलब एक फोर्ट को रिजॉर्ट में कन्वर्ट करा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से. खजुराहो के पास है, वो खजुराहो से 30 किलोमीटर दूर है. आपको पता है वो कितने साल का एग्रीमेंट है? 99 ईयर्स. और उसका जो रीडेवलपमेंट नहीं कर, उसका भी ट्रेड रिसीवेबल होटल्स बन रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है. मतलब मुझे और एक चीज, इन्होंने पिछले साल एक अमर रेमेडीज करके एनसीएल में कंपनी उठाई थी, जो 1990 की एक आयुर्वेदिक. तो कंपनी ने एनसीएल से उठाने के बाद उनको पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 40 करोड़ बाजू में के लिए हुए. तो मतलब मुझे समझ नहीं रहा है कि हाउ कैन रेगुलेटर्स डू नॉट टू सच कंपनीज. मतलब क्या ही बोलूं, और तो बहुत चीजें, बट छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे. Yep, agreed. Just I was seeing this point where कंपनी के एनुअल रेवेन्यू से ज्यादा उनका ट्रेड रिसीवेबल्स था, एंड उसमें कई सारा ट्रेड रिसीवेबल ऐसा भी था जो एक साल से ज्यादा से भी अटका हुआ था. So again, on that note, I had thought I'll not apply. So that was our read with respect to Garuda Construction and Engineering Limited. Not going to apply for this issue. Maybe with that, Rohit and Yash, do you have anything to add, or we can go ahead to the next two SMEs and talk about them? Just a very tiny point. I think Tanmay has ripped this IPO apart already. I'll just add one more point that will add a little bit more to the same sentiment. The LM is Corpvis. They have done, I normally don't pay too much attention to this, but I realized one thing. They have done 3 SMEs before. 2 of them listed exactly 0. The 2 that have listed before, Aluwind and Jayam. There's one listing tomorrow, which I'm fully expecting to also list at 0. That is a 0 premium. So this LM
does not leave anything on the table. Even this company, even if you ignore all the issues, which are like huge red flags, it is still very expensive. It's coming at 24, 25p. So it's like, it just doesn't seem to make any sense at all. So I fully subscribe to Tanmay's view. सर मैं और एक लास्ट और एक ऐड करूंगा. ये प्रमोटर ग्रुप की और एक कंपनी पहले से लिस्टेड है, आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल्स और प्रोजेक्ट्स. मतलब ये कंपनी थोड़ी पॉपुलर हुई थी रिसेंटली, सबको पता ही होगी. ये स्टॉक नवंबर में 17 रुपए का था, 17 रुपीज. ये स्टॉक 75 तक गया सिर्फ 3 महीने में, और वहां से जो है डंप हुआ है 30 रुपए पे आ चुका है. और मतलब ये कंपनी का रेवेन्यू इन्होंने आईपीओ के वक्त 100 करोड़ का प्रोजेक्शन दिखाया था. आज 40 करोड़ में से 20 करोड़ का अदर इनकम. मतलब प्रमोटर मतलब हाथी खराब इन लोगों का, मतलब पहुंचना ही नहीं यार. क्या मतलब लोग आईपीओ लेके आते हैं. और बाय द वे एलएम का कल साज होटल्स का लिस्टिंग है, कल देखते हैं क्या होता है. उसे सेम एलएम है जो गरुड़ा ला रहा है. Yep. So this is one of those classic issues where you don't go by the GMP. Screen पे कुछ तो GMP दिख रहा है, from what I understand. It's around 20% if I'm not wrong. But I feel that is like like it's a screen GMP. Maybe gray में trading हो भी रही है नहीं, I'm not 100% sure, but be very careful with respect to applying to this issue. Fundamentally, this doesn't deserve to be applied. I am going to avoid this issue. Maybe with this, I will move forward to the next company. We'll talk about ख्याति ग्लोबल वेंचर्स. 2 एसएमई की बात करने वाले हैं. सो पहले ख्याति ग्लोबल वेंचर्स की बात करेंगे और उसके बाद शिव टेक्सकेम की बात करेंगे. ख्याति ग्लोबल वेंचर्स, अगर मैं समरी बताऊं तो अराउंड 18 सीआर का आईपीओ है, और 18 सीआर में से सिर्फ 10 सीआर का फ्रेश इशू है और 8 सीआर अप्रॉक्स का ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल. मतलब प्रमोटर कैश आउट कर रहा है 8 सीआर. कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो अराउंड 70 सीआर लगाई गई है. 70 करोड़ की वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है. तो कंपनी अगर मैं बात करूं क्या करती है, तो कंपनी जो है वो एक्सपोर्टर है ऑफ एफएमसीजी एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड नॉन फूड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली क्या होता है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में ना इंडियन स्टोर्स होते हैं. इंडियन स्टोर्स में वो सब चीजें मिलती हैं जो वहां के सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती हैं. सो उन सब चीजों को ये प्रमोटर जो ग्रुप जो है उनकी कंपनी यहां से इंडिया से भेजती है उन सब कंट्रीज में और वहां पे सेल करती है. सो दीज आर थिंग्स लाइक फूड स्टफ में तुम्हारा मसाले हो जाते हैं, बिस्किट्स हो जाते हैं, पार्ले जी वगैरह जो बाहर नहीं मिलते, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती हैं. सो ऐसी कई सारी चीजें, माउथ फ्रेशनर्स एक्सेट्रा, जो बाहर नहीं मिलते हैं उन सबको इंडियन स्टोर्स में प्रोवाइड करती हैं. फूड स्टफ, नॉन फूड में जैसे हेयर ऑयल हो जाता है, पैराशूट वगैरह, जो भी बेसिकली आप सोच सकते हो कि बाहर ब्रांड नहीं है, सिर्फ इंडिया में ब्रांड है, वो सब कंपनी बाहर भेजती है. उसके बाद हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भेजती है, जैसे कि रोटी मेकर होता है, रोटी नहीं बनती क्योंकि बाहर जनरली. उसके बाद अपना कुकर होता है, वो सब चीजें बेचती है. उसके बाद पूजा वगैरह की चीजें बेचती है, अगरबत्ती वगैरह, राखियां. फार्मास्यूटिकल में थोड़ा काम है, जैसे वो बाम वगैरह होते हैं जो बाहर नहीं मिलते हैं कंपैरेटिवली, वो सब इंडियन स्टोर्स के थ्रू सेल करती है कंपनी. और कंपनी जो है वो उनका खुद का बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज फूड स्टफ. ये जो दाल वगैरह होता है, चावल होता है, मसाले होते हैं, ये सब सेल करती है. दैट्स लाइक 88% ऑफ द बिजनेस, अराउंड 22 सीआर इन फर्स्ट क्वार्टर. सो कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा है. बाय द वे कंपनी का रेवेन्यू इज समवेयर अराउंड 91 सीआर इन FY 24, जिसमें से 80 सीआर, 87% वॉज फूड स्टफ, 8% वॉज नॉन फूड एफएमसीजी. नॉन फूड एफएमसीजी में आपका वो पैराशूट ऑयल वगैरह आ गया. उसके अलावा 1% फार्मास्यूटिकल, 1% फेस्टिव, 2% हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह. अब कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड फैले हुए हैं, कस्टमर्स जो इंडियन स्टोर्स हैं. सो यूके से अराउंड 18% बिजनेस होता है, यूएसए से 15% होता है, न्यूजीलैंड से 8% होता है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से 8% होता है, यूएई से 4% होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20% होता है. सो बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हो कि जहां पे भी इंडियन डायस्पोरा है, वहां पे जो भी उन्हें इंडियन स्टोर्स में चीजें चाहिए होती हैं, वो सब ये बेसिकली ये क्या करते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इंडिया में ले लेते हैं, उसके छोटे छोटे पैकेट बना के एक्सपोर्टर्स को दे देते हैं और बीच का मार्जिन कमा लेते हैं. तो उस हिसाब से बिजनेस ठीक है, बट लाइक
I feel it's a arbitrage business end of the day, so it's not something which is like truly a listed play. It can be disrupted someday. हो सकता है कि वहां की कंपनियां करने लग जाएं. जैसे मैं रिसेंटली देख रहा था, एटलीस्ट यूके में तो कई सारे जो उनके चेन है, सेंसबरी जो उनका सुपरमार्केट है, वहां पे भी ये सब चीजें आजकल मिलने लग गई है, मसाले वगैरह मिलते हैं. तो जब वो रखने लग जाएंगे तो इनका बिजनेस ओवर हो जाएगा इन अ वे, राइट? सो I feel this is a transitionary business. I'm not super like comfortable on it in a super long term. But अगर business की बात करूँ तो कंपनी जैसे मैंने बताया, शायद प्रमोटर को भी इसीलिए लगता है, इसलिए वो 70 करोड़ में वैल्यूएशन पे 8 करोड़ कैश आउट करना चाह रहे हैं. ओएफएस बड़ा है, लाइक 18 में से 8 करोड़ का ओएफएस है. अब अगर मैं कंपनी की बात करूं रेवेन्यू की, सो कंपनी ने अराउंड 96 सीआर रेवेन्यू किया था FY23 में. FY22 में 93 किया था, FY23 में 96 किया था एंड FY24 में 104 किया है. सो ग्रोथ इज रेदर स्लो. जैसे आपको दिख रहा है टॉप लाइन पे ही ग्रोथ कम है, बट बॉटम लाइन पे समाउ ग्रोथ हैज बीन इंक्रीजिंग. 2 करोड़ उनने FY23 में किया था, 2.5 करोड़ FY23 में, 2 FY23 में किया था, 2.5 FY24 में किया था. और FY25 के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 1 करोड़ रुपया इनने लगभग बना लिया है. सो उस हिसाब से अगर आप इस कंपनी का पीई देखोगे, क्योंकि 70 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ रही है, बहुत छोटी वैल्यूएशन है. सो 18 के पीई पे आ रही है बेसिस द एनुअलाइज्ड FY25 रिटर्न, एंड FY24 के हिसाब से 27 पीई पे आ रही है, विच आई थिंक doesn't leave anything on the table. Plus, I was not super interested on the business. If I tell you seriously, I really think it is a transitionary business. It's not something which can pick up because there will always be fear of substitution. Someone from that country might substitute them probably, or if you really feel that that nostalgia will always remain and people will always want to consume, let's say, a Parle G or a Thumbs Up or all those brands which are not available outside India, and there will always be a market for them. Maybe this is the play, but again, I think that this is rather small and nuanced, so I would not want to bet on it. प्रमोटर पेडिग्री की बात करूं, सॉरी मर्चेंट बैंकर की बात करूं, तो आर्यमन फाइनेंशियल करके एक मर्चेंट बैंकर है. ऑनेस्टली आई डिडंट सी like anything bad about them or anything good about them. They are coming after a long time. कुछ good issues हैं इनके ऑफ लेट. पास में स्काई गोल्ड इनने किया है, मरीन इलेक्ट्रिकल्स इनने किया है, सुनीता टूल्स इनने किया है, बट उसके बीच में कई सारे बेकार इशू भी चिपकाए हुए हैं. सो इट सीम्स लाइक अ वेरी एवरेज इशू टू मी. ग्रोथ वुड ऑलवेज बी कंस्ट्रेंट, क्योंकि जहां पे ये ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे वहां आई फील कर रहे हैं. सो एंड कितना ज्यादा बढ़ जाएगा आई एम नॉट 100% श्योर, बिकॉज ऑफ विच आई विल बी अवॉइडिंग दिस आईपीओ स्पेशली एट 27 FY24 PE. इट्स अ एंड ऑफ द डे एग्रो कमोडिटी बिजनेस, राइट? इट्स अ कमोडिटी बिजनेस. ट्रेडिंग कर रहे हो तुम, यहाँ से बाहर भेज रहे हो. अब वो बोल सकते हो तुम कि एक्सपोर्ट का मार्जिन थोड़ा ज्यादा होगा, बट एंड ऑफ द डे स्टिल तुम एक्सपोर्ट ही कर रहे हो, सो मार्जिन 2% ही है, तो कितना ही बड़ा लोगे. सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील इट्स अ क्लियर अवॉइड फ्रॉम माई एंड. आई विल नॉट बी अप्लाइंग टू दिस आईपीओ, ऑल्दो आई थिंक देयर वाज सम GMP ऑन दिस एज वेल. नॉट 100% श्योर, बट I'm not sure how much chips चकना बेच के तुम कमा लोगे outside countries, because of which I am avoiding the issue. But that was what my read was of ख्याति Global Ventures. So हमने 2 कंपनी की बात की अभी तक, गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस की और उसके बाद ख्याति ग्लोबल की. अगर आपने बीच में ज्वाइन किया है ये और मिस कर दिया है, तो आप ऊपर यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको भी फॉलो कर सकते हो. वहां पे ये मैं पोस्ट कर दूंगा कल, सो यू कैन लिसन टू इट. बट विद दैट we'll move forward to the third issue. शिव टेक स्कैम की बात करेंगे, जो कि थर्ड SME IPO है, जो कि ओपन इस वीक हो रहा है. अभी ओपन नहीं हुआ है पर से, बट जस्ट टू सेट इट अप, इट्स अ बिग साइज आईपीओ. 101 करोड़ का आईपीओ है, और कंपनी जो है वो केमिकल्स इंपोर्ट करके यहाँ पे ट्रेड करती है एट अ वेरी हाई लेवल. इफ आई कुड अंडरस्टैंड इट राइट, नॉट 100% श्योर इफ दैट वाज द प्ले, बट इनका LM काफी अच्छा है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द नॉइज वाज. सो मे बी यस, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट शिव टेक स्कैम? Yeah, sure, Manish. So as you said that they import chemicals and then sell it over here. That is what they exactly do. I You covered this Khyati Global. I could relate more what you said, trading business and all. So mota moti kind of same business. What they do is they source chemicals from international producers and suppliers, and they redistribute them in India. They handle the products. They store that.
then they take care of logistics, and then they distribute it to the other industrial companies or uh, chemical companies in India. So uh, in terms of products, they have variety of products right now. Recently, only they have increased their product portfolio from 21 in FY22 to almost 43 products now, which is double the products that they're offering. Similarly, they have also grown their customer base from 400 from FY22 to 700 in June 2024. तो काफी अच्छा कस्टमर बेस इन्होंने बढ़ाया है अपना इन 2 सालों में. प्लस इफ आई टॉक अबाउट ये किस चीज के लिए इशू कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इशू इज गोइंग टुवर्ड्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि एज अ कैपेसिटी में तो बस इनको स्टोरेज का टेक केयर करना पड़ता है, एंड बाकी तो फिर बाहर से लाके इनको बेचना ही है. तो जितना ज्यादा मेरे को वर्किंग कैपिटल मेरा हाथ में रहेगा, मैं उतना ज्यादा इंपोर्ट करा पाऊंगा एंड आगे पास ऑन कर पाऊंगा. तो सारा का सारा मेजरली तो वर्किंग कैपिटल में ही जाएगा. इन टर्म्स ऑफ इनके फाइनेंशियल्स में अगर बोलूं तो फाइनेंशियल इज क्वाइट डिसेंट. कंपनी डिसेंटली ग्रो कर रही है. द ओनली इशू इज कि ये जो मार्जिन है इनके, ये 2-3% ही रहने वाले हैं ऑन EBITDA लेवल, एंड पैट पे तो फिर वही 1.5-1.2% रहने वाला है, which is why the company has priced the issue very low at a post issue of 9.4 something का price to earnings दिया है. एंड एक ये रीजन भी हो सकता है कि बहुत बड़ा इशू है, 100 करोड़ का इशू है, एंड SMEs nowadays are not handling big issues, especially when they are or from not a good industry. तो इस वजह से भी कम प्राइस कर रखा है इशू को. बट आई थिंक कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करा जा सकता है फॉर लिस्टिंग गेन्स. बट लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक कि कंपनी में कोई मोट है. खाली प्रोडक्ट पास ऑन करना एंड स्टोरेज करना इज नॉट is enough for our company to grow and become multi-bagger. अभी all this information is I'm covering from RHP. तो अभी आगे जाके if they plan to do something else, तो that I don't know. Yeah, Manish, I think that's all for this issue. Perfect. Thank you, Yash. But yeah, that is what my read was also. It's a very cheap issue, so definitely can be applied for listing gains, क्योंकि ये 9 PE पे आ रहा है. सो 9 PE कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं होता है. एंड एक और चीज अगर बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है. लाइक FY24 में कंपनी ने 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, 1500 करोड़ का रेवेन्यू किया है, विच इज अ बिग नंबर. एंड बॉटम लाइन भी अराउंड अच्छा है, 30 CR है, विच इज लाइक 100% growth from FY23. So on that, maybe I had a slightly contradictory view to Yash, where I feel that at least for short term this is a good play. And जैसे कि आप बोल रहे थे कि ख्याति से आप कंपेयर कर रहे थे, तो ख्याति was at 27 PE. This is at 9. so it is a trading business. No, I'm saying कि we should apply at least for listing gains and for short term, but long term में तो SME में ये कंपनी कोई 10 के P पे भी नहीं लेगा. मतलब एटलीस्ट मैं तो 10 के P पे भी नहीं लूंगा ये कंपनी, अगर मुझे बाद में कोई देगा तो. लिस्टिंग गेन जो मिल गया, शॉर्ट टर्म जो मिल गया, वो ठीक है मेरे लिए. Yeah, agreed. Got it. Perfectly right. As I was saying, this issue is from Wipro. LM is Wipro. और जो Wipro है, इससे पहले उनके जो 2 कंपनी आई थी वो काफी अच्छी थी, बॉन्दादा एंड KP Green का इनने IPO किया था. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर विल बी डिसेंट interest in this issue, so definitely keep that in mind. But yeah, that is what our read was of Shivtech scam. Maybe with that we'll kind of cover the 3 IPOs जो हमने already कर दी. Garuda is a straight avoid. Khyati Global is like, I won't say it's a straight avoid, but I don't see anything left on the table in it. And Shivtech scam is like, at least for me, these all our ratings are for me. You take your own decision. But Shivtech scam is a IPO which I would be applying only for listing gain. Just want to check Rohit and Yash, Tanmay, can you guys hear me? Because I think Yash can't hear me. Yes, we can hear you. I can hear, yeah. Okay, perfect. Got it. So that is what our reviews were. Maybe with that we'll move on and we'll talk about ESM framework, which is coming up in SMEs, and then maybe about Hyundai
listing as well, Hyundai IPO as well, maybe very quickly. But ESM framework की मैं बात करता हूँ. मैंने ना एक बहुत helpful thread राज ने लिखा था, so उसको ऊपर पिन कर दिया है. So if you want to understand how ESM work, प्लीज गो ahead and do that. ऊपर जाके आप वो लिंक फॉलो कर सकते हो. बट आई विल ऑल्सो गिव अ वेरी rudimentary understanding of ESM. I just want to very explicitly mention that I am not an expert at this, so please, I could be completely wrong in what I am mentioning. Please feel free to discard any of that, and please definitely verify what I am saying. A lot of it will anyways change because a lot of it is subject to interpretation, clear नहीं है. But अगर मैं बात करूं तो ESM क्या होता है? It stands for Enhanced Surveillance Measures. So जब भी सेबी को लगता है या फिर एक्सचेंज बोर्ड्स को लगता है कि कुछ इश्यूज में अननेचुरल प्राइस मूवमेंट है, कुछ स्क्रिप्ट्स में अननेचुरल प्राइस मूवमेंट है, वो कुछ मैन्युपुलेट हो रहे हैं, तो वो उनको ESM में 1 या GSM 2 या GSM में डाल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि जेल में डाल दिया इन अ वे. बट अगर मैं बात करूं कि ESM होता क्या है, सो ESM बेसिकली इज कि उसमें उन शेयर्स में 5% सर्किट लग जाता है इफ इट इज इन स्टेज 1 एंड 2% सर्किट लग जाता है इफ इट इज इन स्टेज 2. जैसे आप बोलोगे कि बट 5% के तो एसएमई वाले एटलीस्ट तो आदि हैं, बिकॉज एसएमई इज मोस्टली एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 days आर इन T2T. सो उसमें क्या होता है कि हमें तो आदत है, राइट? सो सिमिलर थिंग, बट एटलीस्ट ऑन द मेन बोर्ड व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, क्योंकि मेन बोर्ड में क्या होता है, तुम सेम डे इंट्राडे अलाउड होता है. एसएमईज में फॉर द फर्स्ट 10 days ऑफ आईपीओ एंड देन लेटर ऑल्सो दे कीप गोइंग इनटू T2Ts as and when the board considers them okay. But here the change is that if it is in ESM stage 1, so just to tell you what are the criteria first. So if any company is above 1000 CR issue, लाइक उनकी मार्केट कैप जो है वो 1000 CR से ज्यादा है, तो वो उसमें ESM में नहीं जाएगी. सो दोज इश्यूज विच आर ग्रेटर देन 1000 CR ऑन लास्ट फ्राइडे, तो ये लिस्ट ना हर फ्राइडे आएगी. सो उस फ्राइडे को जब वो क्लोज हो रहे हैं तो 1000 CR से ऊपर है तो वो ESM में नहीं जाएंगे. उसके बाद जो भी फ्रॉम आर अंडरस्टैंडिंग, अगेन दिस नीड्स टू बी क्लियर्ड, बट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग इफ एनी IPO has came in because they look at 3 month price movement कि 3 महीने एटलीस्ट में वो प्राइस मूवमेंट कैसा हुआ है. तो अगर 3 महीने नहीं हुए उसको, तो उसको भी ESM में नहीं जाएगी वो. सो एनी न्यू IPOs which haven't completed 3 months will not go into any ESM from my limited understanding. That might be changed tomorrow when we get the list. बट अब अगर जाना है किसी को ESM 1 में, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? सो उसका क्राइटेरिया ये है कि बेसिकली कंपनी ने दो चीजें देखते हैं ये लोग. तो एक तो देखते हैं हाई लो प्राइस वेरिएंस और एक देखते हैं क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएंस. बेसिकली क्लोज टू क्लोजेस की किस रेट पे क्लोज हुआ, एक बार क्लोज टू क्लोज ही देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेरिएंस होता नहीं है एक दिन में जितना फॉल हुआ. सो अगर क्लोज टू क्लोज वेरिएंस में ये बेसिकली क्या देखेंगे कि अगर कंपनी ने पिछले 3 महीने में 50% से ज्यादा बढ़ गई, या 6 महीने में 75% से ज्यादा बढ़ गई, या 12 महीने में 100% से ज्यादा बढ़ गई. टू रिपीट, 3 months में मोर देन 50% इंक्रीज हो गया शेयर प्राइस में, या 6 months में मोर देन 75% इंक्रीज हो गया, या 12 months में 100% इंक्रीज हो गया. एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन रूल एज वेल, वेयर इन इट बेसिकली मीन्स दैट द इंक्रीज द वेरिएशन इज greater than 1 standard deviation. Basically 1 standard deviation जो होता है, सो ये जितनी भी ये 1000 CR की कंपनी है उनका एक पूल बनाएंगे, और उसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 68% कवर कर लेता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मैच के हिसाब से. तो उसके बाहर कुछ भी होगा तो वो उसको उसमें डाल देंगे ESM में. सो अगेन स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, बट द थिंग इज दैट इफ योर स्क्रिप्ट इज ओल्डर देन 3 months एंड इफ इट इज लेस देन 1000 CR, then there might be a chance that if the price is increased unnaturally according to SEBI, then it might be put in ESM 1. What happens if it is put in ESM 1? तो उसमें क्या होगा कि सर्किट जो है वो 5% की हो जाएगी और वो T2T हो जाएगा शेयर. बेसिकली आप उसको सेम डे खरीद के बेच नहीं सकते, इंट्राडे अलाउड नहीं होगा, दूसरे दिन ही बेच सकते हो. BTST, बाय टुडे सेल टुमारो ही हो सकता है बेस्ट केस. बट उसकी हमें आदत है क्योंकि हम SMEs में यूजुअली ऐसा होता है. The problem is if they go into ESM stage 2. So ESM stage 2 में क्या होता है कि अगर जैसे वो जो कंपनियां हैं स्टेज 1 में चली गई, ESM में चली गई, और उसके बाद भी उनमें 15% का इंक्रीज हो गया अगर, तो वो स्टेज 2 में भी चली जाएंगी. सो बेसिकली इफ द शेयर प्राइस इंक्रीजेस बाय 15% इन अ वीक, देन दे गो इनटू स्टेज 2.
विच इज फ्राइटनिंग बिकॉज स्टेज 2 में क्या होता है 2% प्राइस बैंड हो जाता है, जो सर्किट होता है वो 2% हो जाता है, और 2% सर्किट में क्या होता है कि लाइक लिक्विडिटी बचती नहीं है बिकॉज ऑफ पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस. सो पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस में समझाता हूं आपको क्या होता है. सो पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस मीन्स कि जो ट्रेडिंग होती है ना वो दिन में सिर्फ 6 बार होगी. एक बार 10 बजे होगी, एक बार 11 बजे होगी, एक बार 12 बजे होगी, एक बार 1 बजे होगी, एक बार 2 बजे होगी और एक बार 3 बजे होगी. सो इसका प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ट्रेडिंग बेसिकली आप ऑर्डर डाल के रखोगे और फिर वो 10 बजे एग्जीक्यूट होगा जाके, तो आप तो इतना लाइक तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ऑर्डर हो ही नहीं रहा कि वॉल्यूम अपने आप गायब हो जाता है. सो आई अंडरस्टैंड सेबीज मोटिव बिहाइंड दिस कि उसके बाद मैनिपुलेशन हो ही नहीं पाता, बट अगेन मैनिपुलेशन पीपल विल फाइंड देयर वर्क अराउंड्स, बट दैट इज व्हाट हैपेंस इन ESM2. अब अगर मैं बात करूं 15% से ऊपर बढ़ गई तो उसको ESM2 में डाल देंगे पिछले हफ्ते में. फिर अगर ESM2 से वापस ESM1 कैसे आना, मतलब फिर उसमें 2% सर्किट लगेंगे, तो उसमें क्या होगा कि या तो वो अपर सर्किट पे होगी या तो लोअर सर्किट पे होगी यूजुअली कंपनीज फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन. और ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन दोस शेयर्स. अब अगर वो शेयर जो है वो पिछले एक महीने में 8% से ज्यादा नहीं बढ़ा तो वो वापस ESM1 में आ जाएगा, और अगर बढ़ा तो फिर वो ESM2 में ही रहेगा. सो अगेन companies can keep moving between ESM1 and ESM2, and it will be very complicated to keep track of all of this, I feel. But what the one good thing it will do is कि manipulation कम होगा. Some shares may be available for slightly cheaper rate क्योंकि इतना ज्यादा वो मूव ही नहीं कर पाएंगे per se, and people will just leave them. At least the short term traders will try and leave them. So it is good for people who want to invest for the long term. Like my recommendation for this is again, if you are invested in it for the long term, you don't need to worry. All you need to do is to find fundamentally sound companies जिनका fundamental strong है, जो result अच्छा देंगे. अगर वो result अच्छा देगी तो market will find a way to value it. If you are looking for companies which are operated, it will become difficult. Which is what SEBI wants, which will happen. I don't know, like there will be a lot of nuances which will come with it, and there will be a lot of collateral damages as well, just जो इसकी वजह से होंगे. We'll figure them out as they come across. All I want to say is that if you're looking for it at it in term like long term, I don't think anything changes. We will figure out a way. Market will, in the long term, markets are always efficient. Market will find a way to value those companies where they should be valued. If you are finding those fundamentally strong companies and which have fundamental tailwinds and which are growing fast, then you don't need to worry about ASM. In the short term, we might expect some volatility. We'll see how it comes along. But that's what I wanted to add on ESM framework. If you want to understand the specifics, मैंने ऊपर एक thread को pin कर रखा है. You can go ahead and do that as well. Go through that thread as well. उसके अलावा मैंने अपना YouTube चैनल भी डाल रखा है, तो अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ऊपर है वो. एंड ट्राई एंड टेक दैट फ्रॉम एंड लिसन टू दीज कंपनीज एज वेल एज ESM framework there. But anything Yash, Rohit or Tanmay you guys want to add on ESM framework? No, I have nothing to add, but you have covered well. ना मुझे यार एक चीज ना ये समझ नहीं आती कि ESM पे आपने रूल्स तो ला दिए, बट इट इज अ बिट अनफेयर फॉर द इन्वेस्टर्स कि जो लोग फ्री का पैसा बना रहे हैं लाइक दी मार्केट मेकर्स और दी फ्लिपर्स, उनके ऊपर भी कुछ रूल्स लाने चाहिए. मतलब ये तो यार वन साइड. आई नो दिस इज डन जस्ट फॉर दी सेविंग दी हार्ड एंड मनी फॉर द रिटेलर्स, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी रूल्स फॉर द पीपल हु आर अर्निंग फिक्स प्रॉफिट्स. मेरा इतना ही है इससे कि वहां पे भी कुछ रेगुलेशंस आने चाहिए. Completely agreed. There should be a lot of regulation, especially on the market making side or on the anchor side. क्योंकि market making में जैसे you are like companies का market maker का काम क्या होता है? To provide liquidity. Market maker कई बार क्या होता है? Day one पे sell करके चले जाता है सब कुछ. So how is that market maker providing liquidity? That is a lot more visible to see. But again, can't do much with what you can do. You need to live with that. So completely agreed on that part. एक question जो मेरे को आया है, any other questions that you guys have kind of put them across as well. The question is, what happens if a company goes to crosses 1000 CR in ESM2? From my understanding, again, I might be completely wrong, but it will still have to go back to ESM1 and then come out of ESM1. It will not be considered in future
बिकॉज एक बार वो बाहर हो गई तो फिर वो बाहर हो गई वो ईएसएम फ्रेमवर्क से, उस पर एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स नहीं लगेंगे, बट जब तक लग रहे हैं तब तक तो लगेंगे, इज माई अंडरस्टैंडिंग कि उसको बाहर तो आना पड़ेगा एक बार. दैट इज वॉट माई अंडरस्टैंडिंग इज. वील सी हाउ इट evolves. A lot of it is still up for discussion, so we'll see how that comes across. I'll just guys, what I think go on. is कि देखो, जिसको चिपका के जाना होगा ना, वो चिपका के चले जाएगा इसमें भी. The only thing which I am concerned is liquidity, क्योंकि SME is very under owned stocks when compared to main board stocks जो कि 1000 करोड़ से नीचे हैं. अगर मैं उनसे कंपेयर करता हूँ तो SMEs आर वेरी अंडर ओन, मतलब शेयर होल्डर्स बहुत कम होते हैं उसमें. तो विच इज वाई आई थिंक कि थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रेशर हो सकता है मार्केट्स में रिगार्डिंग दिस ESM, क्योंकि कोई सिंगल बंदा ही हैवी क्वांटिटी बेच के जा सकता है. बट आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म देयर इज अ इशू. बट एक अनदर पर्सपेक्टिव है मेरा इसमें कि अगर अगर सपोज कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड है, 1000 करोड़ से नीचे है, कंपनी अच्छा कर रही है, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो इट्स प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड मे बी 2 years में, तो उसका वैल्यू कैसे करेगा मार्केट, कितना टाइम लगेगा उसको वैल्यू करने में. प्लस अगर इन बिटवीन ही नीड्स फंड्स, तो मतलब प्रमोटर को पता है कि ही हैज दैट मच कैपेबिलिटी कि मैं इतना तो जनरेट कर सकता हूँ, बट स्टिल ही विल हैव टू डाइल्यूट हिज ओनरशिप पैसा रेस करने के लिए एट अ वेरी लोअर वैल्यूएशन, जो एक्चुअल में उसे नहीं मिलना चाहिए. मतलब एक्चुअल में उसको वैल्यूएशन ज्यादा मिलना चाहिए, बट ड्यू टू दिस ESM एंड ऑल उसको पैसा तो चाहिए ही है काम करने के लिए, तो वो मच लोअर वैल्यूएशन पे होगा, बल्कि वो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है. प्लस उसका बनता है करना क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है. तो दिस इज वन थिंग जो मेरे को लगता है इज नेगेटिव टुवर्ड्स द कंपनीज ओनर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, जिनके पास खुद का 70% ओनरशिप है, एंड हम तो खैर वो 24% वाले लोग हैं बस. तो आई थिंक उनको थोड़ा डाउन साइड है इसमें, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी एक्चुअल फेयर वैल्यू में आने में काफी टाइम लगेगा अभी. Uh, I'll also make one point regarding the ESM, whether it's the right thing to do or not. Because many times there are people, see, the people who want to operate or people who want to kind of make money the way they operate, and SME stock, say, before ESM rules. Even in mainboard today, ESM rules apply. And there is a different way in which these guys make money, where they're aware of when a stock is going to come out of ESM2, go into ESM1, and it is likely to come out of ESM1 and go, back into regular trading. And these people, there are people who have that knowledge ahead of time, and they make money in that way, by taking positions before that information is released to the public. So it feels like whatever you do, SEBI does something, there are people who will find other ways to make money, around these restrictions. So at the end of the day, it feels like it's only the retailers who are losers in all of this. So somewhere, I feel these things are not thought through well enough. And there are enough and more ways in which the guys who want to make money of these stocks and operate these stocks will find ways to do that. So yeah, I just find this very sort of ill-conceived and very short-termish in thinking. But we'll see. We'll see what happens. I think short-term there'll be volatility, but genuinely valued, fundamentally sound stocks should still do okay. Again, what I also feel will happen is that short term में volatility भी रहेगी, plus जो order अगर आएंगे बड़े, तो फिर retailers को कुछ भी नहीं मिलेगा, because people like how you call them flippers or whatever, people who have fast connections, they will always be in the first line, and they'll like what you see on pre-IPO listing at 9 o'clock, जो लोग order punch in करते हैं, that will start happening every day, because just 2% circuit, right? So the liquidity will become so smaller that every day stocks will continue to remain at circuit. You will put in your order, but the day that you get your order is the day that will be the short-term top of that stock. That's how a lot of these penny stocks operate. I feel it is something which will happen here also. So it is a problem for people who are who are not sure of which boat they are in. Like categorically thinking, if I really think, if you are a trader, if you are on your screen every day, you will find a way. If you are an investor, this should not matter to you. If you are somewhere in between, this will be a problem. Is how I kind of think about it at a very high level. Anything that any of you guys need to add, or we can move to Hyundai IPO?
Sir, we have Nikesh Bhai on our space. We can take on the speaker. We can take his views too. Let me check. He hasn't sent a request. Let me see if I can send. I have checked. But yeah, Tanmay, do you want to go ahead and talk about the IPO, Hyundai IPO valuation next? यस, तो मैं थोड़ा Hyundai पे बात करूंगा. तो स्टार्टिंग में देयर वर एक्सपेक्टेशंस दैट द प्राइस बैंड विल बी अराउंड 1800 अराउंड, and there will be a decent 20-30% scope left on the table. That was the primary thing when the rumors of the Hyundai coming in the October came. But थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, people assumed that the price band will be 70-50, means the people who were working on the grey markets. Okay, तो उसके वजह से ग्रे मार्केट ऊपर गए. बट देयर वाज अ आर्टिकल 2 days बैक that the company is targeting a valuation of 1,60,000 crores, and they have upsized the IPO from 24,700 crore to 27,700 crores. तो इसके वजह से क्या हुआ, जो प्राइस बैंड निकल गया है वो अंदाजे से 1960 रुपीज के आसपास निकल गया और मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके वजह से प्रेशर आ रहा है. बट व्हाट आई फील इज 1960 पे भी एक बहुत ही छोटी वैल्यू बची रहेगी. बट द थिंग इज यार, if the price band really comes above 1900, प्रीमियम्स यहाँ से भी आधे होने में टाइम नहीं लगेगा. तो मतलब जो एक्साइटमेंट मुझे भी पर्सनली था ना Hyundai से, वो अगर प्राइस बैंड 1900 के 1850 के ऊपर भी मैंने देखना चाहता हूँ. बट ठीक है, 1850 से 1900 ग्रे एरिया हो जाता है वो, उसमें ओपिनियंस बहुत अलग हो जाएगी, मतलब मिक्स ओपिनियंस रहेंगे. बट 1900 के ऊपर तो यार थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इंडिया ने आज तक 10,000 करोड़ के ऊपर कोई भी आईपीओ लिस्टिंग अंदर छोड़ दो, प्लस में भी लिस्टिंग होती हुई नहीं देखी है. वोडाफोन आइडिया एफपीओ कैन बी डिफरेंट केस, बट दैट वाज आल्सो 4-5% पोस्ट लोअर सर्किट ओनली, तो वो भी कुछ इतना ज्यादा नहीं था. तो आई फील अगर ये इशू साइज अगर 25,000 करोड़ के नीचे और एक 1750-1800 प्राइस में आए, तो Hyundai एवरीवन विल मेक डिसेंट मनी काइंड ऑफ. अभी तो प्रेशर है सिचुएशन, और यहाँ से भी नीचे जाने की प्रीमियम्स पूरी पूरी उम्मीद है. Got it. Maybe I'll just add this one thing. From my end, I understand that the IPO is far. Let the IPO come. एक बार प्राइस बैंड डिक्लेयर होने दो, उससे पहले जस्ट स्पेक्यूलेशन. GMP मूव होता रहेगा. It doesn't change what we do on a day-to-day basis. Let the price band come. When it is time, we'll talk about what we feel about the company. The company is a brand that nobody can take away from that fact that it's a known brand. People understand about the company. People know about the company. We'll have to check what valuation it comes up at and what price does it leave on the table for new investors. We are hoping it does, but जब आएगा तब अपन cover करेंगे and then we'll see. At that, we'll kind of like end the space at this point unless anyone has anything to add.